very good morning to all of you. Good morning, sir. Good Very morning, good morning. sir. Very good morning. Very good Good morning. morning, sir. Good morning, sir. Good morning to all of Good you. morning, sir. Sir. Very good morning. Good morning. It Good is morning, sir. a weekend. Good morning, and good morning for the extra class also. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning. Now it is already 1 minute past 9. We should start our class. Till 10 o'clock, I will have some discussion about the issues that we are discussing yesterday. That is the issue of development and some related concepts of growth. And one issue that we are not able to touch yesterday, that is progress. Last time I was discussing there are so many dimensions of development or indicators development, or we have some measurements of development also in our syllabus, especially one concept we just mentioned yesterday, that is HDI, Human Development Index. That is one particular component of a syllabus that we discuss separately. Now let us just have a brief background or revision of what we had done yesterday. I was just discussing the first unit, first component, the meaning of development, in which we just focused initially on economic growth and some issues related to economic growth. Then we discussed what types of growth are not desirable, and a few components as discussed by United Nations. We discussed that yesterday also. And then we switched over to economic development. And I just compared and differentiated between these two terms, that is economic growth and economic development. We try to compare these two terms in many dimensions: time dimensions, meaning dimension, then which is lower, which is higher, and so many issues related to economic development. And you had asked a number of questions, and I tried to answer those questions briefly. Before coming to the issue of economic progress, last time we were discussing what are the parameters of development. And I mentioned a few important parameters or dimensions containing so many indicators and measurements also, which have been highlighted by different economists or different organizations while discussing the term development. A few of these parameters are very, very important, like the environmental dimension and the parameters or indicators of environmental dimension, then gender issues, then issue of poverty, etc. And the very first point of these parameters I have mentioned, that is income. The dimension of income can be expressed in terms of gross income or net income. And both gross and net can be discussed in terms of per capita income, that is on an average. Or when you discuss the income in terms of groups, then it is a quintile income. And when you discuss the income in terms of inequalities, then it is Gini coefficient or Gini inequalities of income, Lawrence curve, etc., etc. There are so many indicators that relate to income, which is most important, one of the most important parameters of development. We'll discuss income in detail separately in terms of only with reference to development only. We're not going to discuss income, how it is measured, or which is closed economy or open economy, or equation y c plus I plus g plus x minus m. That is not discussing. That is because that is issue of paper 1. So we have just touching the income in terms of economic development.
And then I touched poverty, demography, education, disease, gender, and so many other dimensions and aspects of development. If you have any query on any terminology that I am discussing here, then please ask the question. Although some of these we'll discuss in detail in later parts of this paper. A couple of these are very, very important, like HDI or GDI or development which is sustainable, etc. That is a separate component of your syllabus also. Therefore, I wanted just to give you an idea how the term development is a very, very broad concept. And growth is a very narrow concept, because all of the parameters which I'm representing here, only first, that is income, is related to growth, whereas all other are related to development, including income. That is the most important thing that I repeat every time, so that you don't get confused that growth is separate, income development is separate, because growth is a very important or significant part of the term development. That is income and non-income dimensions. Except the first bullet, that is income, all other are non-income dimensions. And therefore, the development covers all these dimensions. In addition to these dimensions also, you can think about so many other dimensions also. Now, coming to the new dimension, which is not very, very popular, or you may not get in many books. So far we have discussed briefly two terms, that is economic growth and economic development. But third is economic progress. Economic progress. In Hindi, economic growth means आर्थिक समृद्धि. Development means आर्थिक प्रगति. आर्थिक विकास, और progress means आर्थिक प्रगति. तो समृद्धि, विकास और प्रगति, these all terms, when you discuss, you think all these are similar, but they are difference. तो हमने पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंशिएट किया. अब इसका हम थर्ड डायमेंशन प्रोग्रेस भी देख लें तो आप लोगों को थोड़ी सी और बात समझ में आएगी कि प्रोग्रेस क्या है. तो इन वेरी वेरी सिंपल पैराग्राफ I have just tried to give you what is the meaning of economic progress. Someone asked question yesterday also, that I said that I will discuss in a brief detail what is progress. मैंने बहुत सिंपल लिखा है. मैंने लिखा है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस implies distributive justice. Distributive justice. न्यायोचित. Good morning, sir. Yeah. Sir, I have one question. So, what is that composite point? Okay. I didn't get that yesterday. Okay. Just coming to that. That is the last but one, that is composite, such as HDI. Now, if you look at all other parameters or other dimensions, suppose you say income, it means there may be many indicators of income, but dimension is only one, that is income. Have you got this sentence clearly, what I am saying? Before coming to composite, just think first point. Because I have written all the inside indicator within brackets. मैंने पहले लिखा है इनकम, फिर मैंने कहा सच एज. अब उसके इनकम के बहुत सारे मापक हो सकते हैं, लेकिन सभी मापक, चाहे पर कैपिटा देखें, चाहे नेट देखें, चाहे ग्रॉस देखें, क्विंटाइल देखें, सभी मापक केवल एक ही बात तो कर रहे हैं ना, आय, केवल इनकम की बात कर रहे हैं. Similarly, second is poverty. There can be so many measurements of poverty, so many expressions of poverty, such as absolute poverty, relative poverty, multidimensional poverty, human capability, etc. But all such indicators or parameters focus only on poverty. Similarly, demography, education, disease, gender, social, environment, etc. जितने भी आप डायमेंशन देख रहे हैं,
उन डायमेंशन के मापने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डायमेंशन तो केवल एक ही होगा। Have you got my point clearly? No, sir. Is it okay or not? Yes or no? No, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. आप दोनों कह रहे हैं yes or no। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आई से हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो हेल्थ इज वन डायमेंशन, एक आयाम हो गया स्वास्थ्य का। बताइए अगर हम कहें कि हेल्थ को हमें अगर देखना हो तो उसको देखने का आधार क्या हो सकता है? हेल्थ को देखने का आधार, हेल्थ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को अगर देखना हो तो आप उसे कैसे देख सकते हैं? उसका आकलन कैसे कर सकते हैं? कैसे नाप सकते हैं उसको? बताएं। सर उसमें कितनी फैट है, हीमोग्लोबिन देख सकते हैं उसका, चलिए नॉर्मल है कि नहीं। देखिए, आपने कहा हेल्थ को हम हाइट से देख सकते हैं, हेल्थ को हम वेट से देख सकते हैं, हेल्थ को हम हीमोग्लोबिन से देख सकते हैं, हेल्थ को हम इस प्रकार के बहुत सारे मानक हो जाएंगे कि नहीं हेल्थ को देखने के लिए, Platelets. हाँ? लेकिन डायमेंशन तो केवल एक ही है, हेल्थ। उसको मापने के तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन केवल एक ही बात पे तो सब फोकस कर रहे हैं, यानी स्वास्थ्य। इतनी बात समझ में आई आपको? तो ऐसे ही हम जब इनकम, पॉवर्टी, डेमोग्राफिक, एजुकेशन, डिजीज, जेंडर, हैप्पीनेस, सोशल, एनवायरमेंटल, ये सारी चीज देख रहे हैं, तो इसके मापने के तरीके तो बहुत सारे दे रहे हैं ना, बीच ब्रैकेट में हम दे रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुई? जी सर। आप देखें Yes, कॉम्पोजिट। अब देखिए कॉम्पोजिट क्या है? कॉम्पोजिट का मतलब यह है कि एक ऐसा मापक या एक ऐसा डायमेंशन जिसमें कोई एक आयाम मापने का नहीं है, कोई एक आयाम नहीं है। जैसे अभी आपने बात की हेल्थ को केवल एक ही डायमेंशन, लेकिन उसके आधार बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कॉम्पोजिट एक ऐसी बात लिख रहे हैं जहां पर वो खुद कई आयामों से मिलकर बना हुआ है। There is no one single dimension. If any parameter of development which is based on two or more dimensions, it is called composite. बात समझ में आई कि नहीं? कोई भी ऐसा मान, कोई भी ऐसा आधार, कोई भी ऐसा माप जिसमें दो या अधिक आयाम एक साथ हों, उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट, या हिंदी में कहें संश्लिष्ट, और सरल कह सकते हैं सम्मिश्रित, मिला जुला। कॉम्पोजिट को छोड़कर बाकी आपके सामने जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है वो सभी कोई एक ही डायमेंशन की बात कर रहे हैं, चाहे निर्धनता हो, चाहे आय हो, जेंडर हो, हैप्पीनेस हो, वो सभी एक ही डायमेंशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम कॉम्पोजिट की बात करते हैं तो कॉम्पोजिट में एक डायमेंशन नहीं होता, बल्कि दो या दो से अधिक डायमेंशन होते हैं। सर इसका कोई एग्जांपल होगा कंपोजिट का? एग्जाम्पल मैंने तो ब्रैकेट में लिखा है HDI, लेकिन मैं आपको, ये तो आपके सिलेबस में भी है, लेकिन मैं आपको इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं जिसको आप रोज अखबार में पढ़ते हैं और जिस शब्द से आप परिचित भी हैं। इट इज एवरी डे वेरी इंपॉर्टेंट हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर्स। ये बताइए आपने कभी BSE सेंसेक्स या NSE निफ्टी का नाम सुना है कि नहीं? निफ्टी और सेंसेक्स Yes, sir. Yes, sir. रोज सुनते हैं सेंसेक्स, Yes, sir. कैपिटल मार्केट। कैन यू टेल मी Yes, sir. what is सेंसेक्स और what is निफ्टी? कैन यू टेल मी? सर निफ्टी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। मेजरमेंट ऑफ मार्केट कैप। NSE इज द स्टॉक एक्सचेंज, उसका top उसका 50 इंडेक्स है निफ्टी। Index है, yes, sir. market value. देखिए Sir, Yes, it is sir. a group of 50 company. या जैसे फिर सिंपली समझ लीजिए, NSE दैट इज द स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है निफ्टी, NIFTY, जिसका मतलब है नेशनल इंडेक्स ऑफ 50 स्टॉक्स या 50 शेयर्स आपके शब्दों में। सिमिलरली BSE का है सेंसेक्स, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज,
सेंसेक्स मीन्स sensitive index, and Sensex is regarded as barometer of capital market of India. ये आप दोनों आप रोज पढ़ते हैं अखबारों में, निफ्टी और सेंसेक्स कितना बढ़ा कितना घटा, मतलब बहुत बहुत रोज पढ़ते हैं। अब कोई भी मुझे बता दे आप में से कि सर सेंसेक्स एक बार फिर से बता दीजिए। क्या चीज? सर सेंसेक्स एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए सेंसेक्स तो मैं कोशिश करूंगा एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लूं आपका, और पूरा कैपिटल मार्केट एक ब्रीफ आइडिया दे दूं, खासकर शेयर क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। यस सर। हाँ तो ये क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है वो। सर न्यूज़ आपको पेपर में बहुत प्रॉब्लम होता है सर। नहीं जिस कल ले लीजिए सर, जिस दिन मैं पढ़ा कल ले दूंगा तो लीजिए। आपको लगेगा कि इससे आसान कुछ है ही नहीं, इससे आसान कुछ है ही नहीं। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप अगर थोड़ा थोड़ा सा सेविंग करें, फाइनेंशियल सेविंग करें, और उसको बड़ा सोच समझ कर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, बहुत थोड़ा सा अमाउंट, तो आपका ये अमाउंट इतना अधिक ग्रो कर जाएगा जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। मैं आपको बता दूंगा तो आप बताऊं कैसे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि बिकॉज इट इज ए लीगल मार्केट, और सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये हम लोगों को जानना चाहिए, एंड हाउ टू अर्न प्रॉफिट ये भी जानना चाहिए। तो मैं जब बता दूंगा, एनीवे दैट इज नॉट द इशू राइट। आपने पूछा था कॉम्पोजिट, मैं कॉम्पोजिट समझाने के लिए मैं बहुत सारी बातें आपसे कर रहा हूँ। जैसे हमने कहा कि जो बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एज वेल एज एशिया, स्टॉक एक्सचेंज which was set up in the year 1875, 1875 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये पहला स्टॉक एक्सचेंज है भारत का भी और एशिया का भी। नाउ अब बीएससी, उसके बहुत सारे इंडेक्स नंबर्स हैं, उसके इंडेक्स बहुत सारे बनाए उसने, और उस इंडेक्स में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सेंसेक्स, SENSEX, जिसका फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स या संवेदी सूचकांक। और ये जो सेंसेक्स वर्ड है, बीएससी सेंसेक्स, ये बहुत बार आईएएस मेंस और पीसीएस मेंस में पूछा गया है कि डिफाइन सेंसेक्स। सेंसेक्स को पूछा गया कि सेंसेक्स क्या है। तो Sir, but it is not a syllabus of mains. what is? Sir, BSc and NXC is not in the syllabus of mains examination. ये बताइए, जब आप कहते हैं इंडियन इकोनॉमी, फाइनेंशियल मार्केट, ये आपका है कि नहीं? आरबीआई है कि नहीं आपके सिलेबस में? फाइनेंशियल सिस्टम आपके इकोनॉमी में है या नहीं, बताएं। Yes, sir. सी का हिस्सा है, ये थोड़ी लिखेगा कि आपके सिलेबस में बीएससी एनएससी है, ये नहीं लिखेगा। अगर उसने लिख दिया इंडस्ट्रियल सेक्टर या कैपिटल मार्केट या एग्रीकल्चर, तो उसमें थोड़ी बताएगा कि एग्रीकल्चर में आप क्या क्या पढ़ेंगे। दैट वर्ड कवर्स एवरीथिंग, दैट वर्ड कवर्स एवरीथिंग। और ये सवाल आप पेपर उठा के देखिएगा, कई बार पूछा गया है व्हाट इज सेंसेक्स। और हम तो ये जानते हैं, हम उसकी बात छोड़ दें, एग्जाम की बात छोड़ दें। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इफ यू रीड द न्यूज़पेपर, इफ somebody asks you कि what is this sensex, because you are a student of economics and if you are not able to answer, then certainly you cut a very sorry figure. ये तो हमारे बताया था, जनरल स्टडीज का कंपलसरी पार्ट है। जनरल स्टडीज का, जनरल स्टडीज में कैपिटल मार्केट भी आप पढ़ते हैं।
और केवल इंडिया का ही नहीं पढ़, NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पढ़ते हैं यूएस का, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है फॉर GS ऑल्सो। सर आज इसी को पढ़ा दीजिए। तो मेरा सिलेबस का क्या होगा? आज तो मैं एक्स्ट्रा क्लास दे रहा हूँ कि मैं अपना सिलेबस खत्म करूं। अगर हम सिलेबस से बाहर जाएंगे और बाद में आप कहेंगे कि सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ, उसको पढ़ा दूंगा। मैंने जब आपसे कहा है तो मैं पढ़ा दूंगा, संडे वगैरह को पढ़ा दूं। जब लेट मी सी कि आपके लिए केवल आपका क्लास है ना, मेरे लिए BA3 भी है, मेरे लिए MA भी है, मेरे लिए रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, एंड सो मेनी कॉन्फ्रेंसेस और बहुत सारे काम हैं। तो मैं जितना भी वक्त मिलेगा मैं आपको जरूर दूंगा ताकि आप अच्छे से पढ़ लें। और फिर मैं यही कहता हूँ बार बार कि ये जो आपके 2 साल बचे हैं, 1 साल तो निकल गया आपका, ये 2 साल बचे हैं, इसमें जितना भी आप सीरियसली मेहनत कर लेंगे उतना ही आपका आगे भविष्य अच्छा होगा और आप सफलता प्राप्त करेंगे। सर लेट मी फर्स्ट फिनिश कॉम्पोजिट। जिन्होंने सवाल पूछा था मैं उस पर बात ही नहीं कर पाया, हम और बातें करने लगे। क्योंकि आपने पूछा कोई एग्जाम्पल है, मैंने कहा चलिए एग्जाम्पल तो आप रोज अखबार में देखते हैं। जो सेंसेक्स है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि सेंसेक्स क्या है, हालांकि हम पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल बताएंगे, इट इज सिंपली एन इंडेक्स ऑफ BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, which is regarded as the barometer of India's capital market। ये तो बात समझ में आई। इसको मानते हैं कि भाई यही बैरोमीटर है हमारा, नब्ज पकड़ लेता है इसी से हम। एंड सेंसेक्स इंक्लूड्स 30 स्टॉक्स या 30 कंपनीज, आपके लिए आसान होगा समझना, 30 कंपनीज शेयर्स, 30 कंपनियों के शेयर हैं। ऐसे निफ्टी में 50 कंपनियों के शेयर्स हैं, 50 कंपनीज इन निफ्टी, 30 कंपनीज इन सेंसेक्स। इतनी बात समझ में आई? आपने BA1 में तो इंडेक्स नंबर पढ़ा था ना, इंडेक्स नंबर BA1 में, इंडेक्स नंबर में आप बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते हैं कि ABCD सब इंडेक्स बनाते हैं। तो यहां पर जो सेंसेक्स है, इट इंक्लूड 30 कंपनीज। कैन यू टेल मी नेम्स ऑफ अ कपल ऑफ कंपनीज? अपने मन से बताइए। TCS, रिलायंस। चलिए, इन्होंने कहा TCS, PNB। चलिए बस होगी बात, मेरी बात हो गई। जैसे आपने कहा TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये IT सेक्टर की कंपनी है, ठीक, IT सेक्टर कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपनी है। HDFC बैंक, ये बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। मारुति उद्योग लिमिटेड, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनी है। ये जो मैंने 3-4 नाम लिए, ये सभी कंपनियां सेंसेक्स में शामिल हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं? अब बताइए, जो मैंने 4 कंपनियों के नाम लिए, ये चारों कंपनियां किसी एक ही फील्ड में हैं या अलग अलग फील्ड में हैं? अलग अलग सब अलग अलग है ना, सब अलग अलग हैं। अलग अलग है सर। यस सर। जब हम इन सभी कुछ आपका हेल्थ सेक्टर की, जैसे डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये हेल्थ सेक्टर की फार्मा कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, ऑयल कंपनी है, आदि आदि। जब ये डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनियों को इकट्ठा करके सबको आपने मिला दिया और कहा कि दिस इज सेंसेक्स, ऐसे ही तब ये जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स इज कॉम्पोजिट इंडेक्स बिकॉज इट इंक्लूड्स वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ वेरियस एरियाज, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट। आप समझ में कॉम्पोजिट क्या है? जब किसी एक क्षेत्र से बात न करके हम अलग अलग क्षेत्रों को इकट्ठा करते हैं और उसको सबको एक में मिला देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट इंडेक्स। जैसे आपने लिखा, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 अलग अलग डायमेंशन है। नंबर 1 इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। नंबर 2 है एजुकेशन, शिक्षा, और नंबर 3 है इनकम। बताइए, तीनों बातें अलग हो गई कि नहीं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग है, एजुकेशन अलग है, इनकम अलग है, लेकिन इन तीनों को इकट्ठा करके हम एक इंडेक्स बना रहे हैं, तो ये कहेंगे हम इसे कॉम्पोजिट इंडेक्स। जबकि इसके अलावा आपने ऊपर जितने भी लिखे हैं वो सभी किसी एक ही बात को फोकस कर रहे हैं, एक ही पर बेस्ड हैं। लेकिन यहां पर कॉम्पोजिट इंडेक्स मींस व्हिच इंक्लूड्स डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट इंडिकेटर्स and all are confined into one single index or one single parameter. That is called सम्मिश्रित, या और अच्छी हिंदी में संश्लिष्ट।
तो हमारा सेंसेक्स इज ऑल्सो composite index of a stock market. NSE is also composite index because it includes not any one area of companies but many areas that I have given example. All those areas clubbed together to convert into one simple index that is called composite index. जिन्होंने सवाल पूछा था composite, I hope कि उनके लिए अब बड़ा आसान हो गया होगा कि composite का मतलब क्या है. Yes, sir. Yes, sir. Sir, what Okay, is any other quantile doubt? income? क्वांटाइल का मतलब है, अच्छा सपोज मैं पूछूं व्हाट इज हाफ, HALF हाफ, इसका मतलब क्या, व्हाट इज हाफ? आधा सर, आधा। आधा मतलब बताइए, आधा मतलब आधा या हाफ का मतलब क्या है? सिंपल 0.2 1/2 एक बटे तो इसका किसी भी चीज का एक बटे तो 50% सर, 50% है 1/2। अगर हम कहें 1/3 33%, 1/3, अगर हम कहें क्वार्टर 25%। 1/4, और जब हम कहते हैं क्विंटाइल तो 1/5। बात समझे क्विंटाइल क्या है? 20%, 1/5, 1/5 मीन्स क्विंटाइल। यानी हम इसको पढ़ाऊंगा आपको इनकम में, कि जब हम पूरे इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर टॉप टू बॉटम इनकम ग्रुप बना लेते हैं, टॉप टू बॉटम, तो टॉप 20%, नेक्स्ट 20%, नेक्स्ट 20%, नेक्स्ट 20%, यानी इसको जब 20% में 5 हिस्से बांटते हैं और फिर देखते हैं कि उनमें इनकम का इंक्रीज कितना है, इनइक्वालिटीज कितनी है, दैट इज कॉल्ड क्विंटाइल इनकम एनालिसिस, जिसको यूएनडीपी मेजर भी करता है। मैं इसकी चर्चा आगे करूंगा। तो मैंने यहाँ पे केवल मेजर कर दिया कि आप इनकम एक डायमेंशन है, लेकिन उस एक डायमेंशन को मेजर करने के लिए या व्यक्त करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स हो सकते हैं। आई थिंक क्वांटाइल इज ऑल्सो ओके, कॉम्पोजिट ऑल्सो ओके। एनी अदर वर्ड विच यू वांट टू डिस्कस? सर गिनी इक्वालिटी ऑफ इनकम। इनइक्वालिटी का मतलब है तो आसान होगा, इनइक्वालिटी का इनकम। तुम गिनी इक्वालिटी ऑफ इनकम सर। गिनी एक्चुअली कोराडो गिनी एक हमारे स्टैटिस्टिशियन हुए हैं, उनका मेजरमेंट है गिनी कोफिशिएंट, जो कि इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम को मापता है। तो यहाँ पे मुझे मुश्किल होगा बता पाना कि गिनी को हम कैसे मेजर करें, क्योंकि गिनी मेजर करने के लिए हमें सबसे पहले लॉरेंस कर्व बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम गिनी कोफिशिएंट इक्वेशन में हम आ जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स मेजरमेंट है। आई विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। अभी यहाँ पे बात मैं नहीं कर पाऊंगा। तो गिनी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम मतलब है गिनी कोफिशिएंट, गिनी गुणांक, जिसके आधार पर हम किसी भी समाज में आय की विषमताओं को माप सकते हैं। ये स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है, ये सांख्यिकी माप है आय विषमताओं को नापने का। जो सांख्यिकी विद थे कोराडो गिनी, उन्हीं के सरनेम है गिनी, तो उनके नाम से गिनी कोफिशिएंट और इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। सर GII is Gender Inequality Index, which is also a part of your syllabus that I will discuss hopefully next week or after that. GII, GDI, GEM, HDI, these all are in your syllabus. तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इस पे अभी छोड़ दें, इसको अभी छोड़ दें, पूरा पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल में, कौन किसने बनाया, कब बनाया, डायमेंशंस क्या हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। Sir, may I ask something? Yes, you can ask something. Why not? Sir, in the third point, life expectancy means? मैं सुन नहीं पाया बहुत ठीक से, फिर से बताइए। सर, डेमोग्राफी थर्ड पॉइंट में हाँ। सर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हाँ सर उसका मतलब कुछ। अच्छा चलिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जीवन प्रत्याशा या प्रत्याशित आयु। ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इट इज वन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ HDI, जो नीचे लिखा हुआ ना HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है। और जब मैं इस पर आऊंगा HDI पर, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बहुत डिटेल में बताऊंगा, कैसे मेजर करते ही बताऊंगा। लेकिन यहां पर ब्रीफली आपको इसका मतलब बता दूं कि जब किसी शिशु का जन्म होता है
व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, हम उसके जन्म के समय जो भी सिचुएशन ऑफ मॉर्टेलिटी उस देश में है, उस समाज में है, जो मृत्यु की संभावनाएं उस देश में और समाज विद्यमान है, उसके आधार पर हम इस नवजात शिशु के कितने वर्ष ऑन एन एवरेज जीवित रहने की आशा करते हैं। हम कहते हैं कि जीवन प्रत्याशा 62 वर्ष है, 65 वर्ष है। इट मींस जिस बच्चे का जन्म आज हुआ है, उस बच्चे के जन्म के समय जो स्थितियां विद्यमान हैं, अगर ये स्थितियां ऐसी ही रहें तो ये बच्चा कितने वर्ष औसत जीने की आशा कर सकता है। दैट इज सिंपल मीनिंग ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉट टेक्निकल मीनिंग। टेक्निकल मीनिंग आई विल डिस्कस व्हेन आई विल डिस्कस HDI। कुछ बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। यस सर। प्रत्याशित आयु हिंदी में या जीवन प्रत्याशा मीन्स द एक्सपेक्टेड years of survival for a newborn baby, assuming all the conditions of mortality remain unchanged throughout the life of this newborn baby. Then how many years on an average the child can survive in any country or any place? This is a brief meaning of this terminology, but I will discuss the terminology in technical terms in HDI, and I ask some questions also. What is the meaning of life expectancy? Because life expectancy can be at a time of birth, it can be at age 1 also, or at different ages also. But I'm not going to in detail that technical part right now, because we'll just miss our own basic issue that we're discussing. I've taken much of your time to tell you what is meaning of composite with so many examples. But I think this is very good discussion. You must keep on asking questions, and you should not have any doubt in your mind about any term. Only then you enjoy the paper, enjoy the subject, and enjoy the issues. Sir, what is TAI? It is Technology Achievement Index. TAI is the Technology Achievement Index introduced by United Nations Development Program, UNDP. Although TAI is not in your syllabus, but I will touch this when I will discuss you HDI, because HDI will relate you GDI, then GII, then GEM, and also I will discuss TI also. But it is not a part of a syllabus. That is simply means Technology Achievement Index of any country, measured by the UNDP. Yes. सर, इन्फेंट मोरालिटी रेट एंड चाइल्ड मोरालिटी रेट इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है बेस पर? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। IMR और CMR दोनों अलग हैं, दोनों अलग हैं। और ऐसा हो सकता है कि इंक्रीज करता रहे। मैं सुन नहीं पाया आपकी बात, फिर से बताइए। सर, ऐसा हो सकता है कि ये हमेशा इंक्रीज ही करे, डिक्रीज कभी ना करे? नहीं, पहली बात तो हमें बताइए कि इन्फेंट और चाइल्ड मॉर्टेलिटी, इनसे आप अर्थ क्या समझते हैं? क्या अंतर है? एक है इन्फेंट यानी शिशु मृत्यु दर, और एक है चाइल्ड है यानी बाल मृत्यु दर। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? सर, इन्फेंट का मतलब कि जो जन्म लेते ही जिसकी डेथ हो जाए, और चाइल्ड मतलब जो जन्म लेने के कुछ दिन बाद तक जीवित रहे, उसके बाद उसकी डेथ। टोटली रॉन्ग आंसर, टोटली रॉन्ग आंसर, टोटली रॉन्ग आंसर। इन्फेंट का मतलब 5 साल के अंदर सर। सर ढूंढ इन्फेंट मींस जन्म लेने से 1 साल बाद इन्फेंट होता है, और बाल मतलब 0 to 5 ईयर, सॉरी आफ्टर 5 ईयर। चलिए, सब लोग गलत बोल रहे हैं, एक आध लोग ठीक ठाक कुछ बोल रहे हैं। हम लोग इसको थोड़ा बाद में करेंगे, जब हम आएंगे HDI पर ना, तो वहीं पे बताएंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक शब्द, एक वाक्य मैंने बोला था अभी आपको, शायद आपने सुना नहीं। मैंने कहा था एट द टाइम ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, इफ द situation of mortality remain unchanged throughout the life of the newborn baby, then how many years the newborn baby can survive? एक शिशु के जन्म के समय जो उस देश में जो मृत्यु की प्रवृत्तियां, जो ट्रेंड्स ऑफ मॉर्टेलिटी हैं,
अगर वो अनचेंज रहे तो वो कितना सरवाइव कर सकता है। ये बात आपने सुनी होगी, मैंने पहले भी सेंटेंस कहा था, यानी जब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे तो अनलेस वी अंडरस्टैंड द मोर्टेलिटी रेट्स, ट्रेंड्स ऑफ मोर्टेलिटी, दे विल नॉट बी एबल टू डिस्कस व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बट सिंपली फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हालांकि बहुत टेक्निकल है, आई विल गिव अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स so that you can be very clear what is IMR and CMR in short terms, infant mortality and child mortality rate. For only a brief information, IMR, infant mortality rate, is also known as U, capital U, U1MR. U1MR. U means under, 1 means age 1, MR means mortality rate. That is, under age 1 mortality rate is called infant mortality rate, and CMR means U5MR. Under age 5 mortality rate is child mortality rate. That is IMR and CMR respectively. At this point, I can discuss only this part because I'm not able to take you forward and introduce what is progress, because we have used more than half an hour of our stipulated 1 hour time, and still I am giving you the meanings of this. So just wait for a couple of lectures, then I will discuss all these things in detail, because whatever you ask, I will answer the questions. But I'm not able to go in detail right now because that will just drift you from our original issue of discussion. I don't want drifting. Therefore, I'm always saying you ask the question. I will try to give you the examples and tell you the meaning briefly, not elaborately. I will elaborate all these concepts when we go to HDI. कुछ बात समझ में आई कि नहीं? IMR और CMR में क्या अंतर है? Yes, sir. एक एज 1 है और एक एज 5 है. U1 मतलब अंडर एज 1, U5 means अंडर एज 5. And these are two very, very important indicators of development also. हम लोग इसको कई जगह आगे देखेंगे भी, IMR CMR को आगे कई इंडेक्स में यूज भी करेंगे हम लोग अभी, वहां पे हम लोग बहुत डिटेल बात भी करेंगे इसको, क्योंकि जितनी मैंने बात बताई इसको सुनना आसान लगता है, लेकिन कैसे मेजर करेंगे ये अभी भी आपको क्लियर नहीं हो पाएगा अनलेस आई गिव यू एग्जांपल्स कि किस स्केल पे नापते हैं, किस ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे नापते हैं, किन डेप्थ को नापते हैं और किन को नहीं नापते हैं। तो जिन्होंने किसी ने शब्द सुना, मैंने ओवरहियर किया कि आपने कहा भ्रूण हत्या, किसी ने ये शब्द कहा था भी, बट दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ IMR और CMR. I will make it very clear, then we'll reach to that point. I think that we may proceed to our that term, that is what is economic progress. हम थोड़ा प्रोग्रेस पर आ जाएं। तो हमने कहा था कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस implies distributive justice. आर्थिक प्रगति का तात्पर्य न्यायोचित वितरण में है, या न्यायपूर्ण वितरण से है, या वितरण में न्याय से है। जस्टिस इन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? अब उसको क्या है हम लोग आगे देख रहे हैं। मैंने लिखा है इट इज अ वाइड टर्म which includes in its scope economic development plus also something more. कल किसी ने सवाल पूछा था मुझसे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ, तो मैंने कहा था कि ये दोनों ही टर्म हम यूज करते हैं, जिसको मैं आज थोड़ा सा यहां पर भी उसको रेफर कर रहा हूं। हमने लिखा है कि आर्थिक प्रगति एक व्यापक शब्द है जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ और भी शामिल किया जाता है, से द वैल्यू जजमेंट। क्या शामिल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल वैल्यू जजमेंट, मूल्यगत निर्णय ऑन व्हाट इज डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, अर्थात क्या वांछनीय है और ये क्या अवांछनीय है। Now tell me one answer, give me one answer. आप कैसे कहते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज कोई घटना घटती है, something happens,
आप तुरंत कहते हैं ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। ये जो अच्छा हुआ या बुरा हुआ कहते हैं, इसके पीछे क्या काम करता है आपके मन में? हाउ यू से इट इज गुड और बैड? सपोज समथिंग हैपेंस and immediately you give the conclusion it is good, it is bad. Our interest. According to own understanding. According to? Please repeat. According to what? Sir, according to society. According to our point of view. According to them. Own understanding. So our what their interest. nature होता है? Okay. By comparing up. Now, are you able to hear me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, what is happening nowadays in Afghanistan and the people behind those situations? Or if yesterday 3 bomb blasts near Kabul airport. Naturally, somebody did it. Some people were involved. Some groups were involved. And anyone who was involved behind that situation, for them, it was desirable or not? For them who were doing this thing. Desirable. So desirable. For them, it was desirable. For them. For those people, it was desirable. For those groups, it was desirable. But if we look at that situation, what will you say? It was desirable or undesirable situation? Undesirable. यानी एक ही घटना घटी, कुछ कह रहे हैं डिजायरेबल है और कुछ कह रहे हैं अनडिजायरेबल है कि अच्छा नहीं हुआ। कुछ लोगों का मकसद ही था कि वैसा हो जाए। About 100 people died. That was their aim. They have achieved. हम लोग क्या हुआ? दोनों बात समझ आ रही कि नहीं आपको? Now, yes, sir. when we talk about progress, we talk about the change in a, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, it is a change which is desirable for a civilized society. एक सभ्य समाज के लिए जो लोग उस घटना को, काबुल की घटना को डिजायरेबल कर रहे हैं, वो असभ्य समाज है. दैट इज नॉट अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, इट इज अनसिविलाइज्ड, बार्बरिक, इनह्यूमन. तो wherever we talk about value judgment, तो value judgment is always related to a civilized society. कुछ साल पहले इन्हीं लोगों ने अफगानिस्तान में गौतम बुद्ध की मूर्तियां ध्वस्त कर दी थी, विशालकाय मूर्तियां ध्वस्त कर दी और उसकी खुशी मनाई. ये उनका वैल्यू था, बट इट इज नॉट द गुड वैल्यू ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी. तो जो ह्यूमन वैल्यूज हैं सिविलाइज्ड सोसाइटी के, उसके आधार पर हम कहते हैं कि क्या डिजायरेबल है, क्या डिजायरेबल नहीं है. देयर आर सम वेरी वेरी कॉमन issues, common perceptions of civilized society. When we say वांछनीय है, झूठ बोलना खराब है, जाहिर सी बात है, कुछ लोग झूठ बोलते होंगे, बट दैट इज नॉट अ वैल्यू जजमेंट. वैल्यू है कि सच बोलना चाहिए एक सभ्य समाज में. इट इज डिजायरेबल. अगर सच कोई नहीं बोल रहा है तो ये अनडिजायरेबल है. आई होप वैल्यू जजमेंट शब्द क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, आप समझ रहे होंगे. Yes, sir. अब बताइए हमें, सपोज अब मैं, जिन्होंने कल सवाल पूछा था, some girl asked me a question कि whether the inclusiveness should be for the growth or development, तो मैंने कहा था कि it can use in both terms. Now I am giving example. Suppose किसी कंट्री में देश की इनकम, जीडीपी और जीएनपी, whatever you say, is increasing continuously. At the same time, say per capita income of the country is also increasing continuously. किसी देश में उस देश की आय बढ़ रही है, उस देश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है. बताइए कि ग्रोथ है कि नहीं? Yes, sir. ग्रोथ है, बिल्कुल ग्रोथ है, बिल्कुल.
लेकिन यस सर, अब देखिए मैं साफ लिखा है, लेकिन अगर ये जो पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, it is being confined more and more with rich people, and there is increasing inequalities between rich and poor. That is quintile what I was telling that time. गरीब अगर और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, किंतु देश की आय बढ़ रही है। तो बताइए, इससे आप डिजायरेबल कहेंगे या नहीं कहेंगे? नो सर। नो सर। लेकिन ग्रोथ कहा कि नहीं? ग्रोथ कहा आपने, ग्रोथ कहा था कि नहीं? ग्रोथ होगा पर डेवलपमेंट नहीं होगा। यस सर। यस सर। देखिए, अभी डेवलपमेंट शब्द यूज नहीं किया मैंने, केवल इनकम यूज किया, नॉन इनकम नहीं यूज किया। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ये बहुत छोटी बात है, लेकिन आप जीरो मिल जाएगा तुरंत आपको। इनकम मीन्स ओनली ग्रोथ। प्लीज 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 फोकस ऑन दिस टर्म। हम केवल इनकम की बात करें, डोंट इंक्लूड द टर्म डेवलपमेंट हियर। तो मैंने इसलिए पूछा था कि कंट्री की इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इट इज नेचुरली अ वेरी वेरी क्लियर इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ हो गया। बट इफ यू से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ऊपर देखिए पहले डिस्ट्रीब्यूशन, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इनकम is more and more unequal, that is resulting into inequalities of income distribution. Poor people are becoming poorer, rich people are becoming richer, and there is growing income inequalities in the society. तो ये जो बात मैंने सेकंड कहा, ये डिजायरेबल तो नहीं है, ये बात, क्योंकि हम किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में जो वैल्यूज हैं, जो स्टेबल वैल्यूज हैं, जो स्थिर हमारे मूल्य हैं, स्थापित मूल्य हैं, एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज हैं, उस पे तो हम यही कहते हैं ना कि आय की विषमताएं कम होनी चाहिए। इनकम डिस्पैरिटीज कम हो ये डिजायरेबल है, या इनकम डिस्पैरिटीज बढ़ जाए ये डिजायरेबल है? डिजायरेबल कौन सा होगा सर? जो कम हो जाए, कम होना डिजायरेबल है। जब आपने ये कहा कि इनकम इनइक्वालिटीज का कम होना डिजायरेबल है, इसका मतलब है कि आपके मन में एक सिविलाइज सोसाइटी का एक वैल्यू था, उसी पर आपने कहा ना डिजायरेबल है ये। यस सर। दैट सर। तो जो मैंने एग्जांपल दिया, दिस एग्जांपल इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रोथ बट नॉट प्रोग्रेस। प्रोग्रेस तब होगा जब ग्रोथ के साथ प्लस समथिंग मोर, दैट इज डिजायरेबल वैल्यूज भी कवर होंगे, तब उसे प्रोग्रेस कहेंगे। इट मींस इनकम बढ़ने के साथ साथ अगर इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं, यानी अनडिजायरेबल पार्ट बढ़ रहा है, इट इज ओनली ग्रोथ नॉट प्रोग्रेस। सेकंड, अगर इनकम बढ़ने के साथ साथ इनइक्वालिटीज कम हो रही हैं, इट इज ग्रोथ प्लस डिजायरेबल चेंज, इट इज कॉल्ड प्रोग्रेस। तो ग्रोथ प्लस अनडिजायरेबल नॉट प्रोग्रेस, ग्रोथ प्लस डिजायरेबल प्रोग्रेस। सर, हाँ बताएं। सर, वी कैन डिफाइन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एज अ सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस। अब सेकंड पार्ट देखो, फिर आप उसी बात पे चले गए, क्योंकि अभी तक हमने केवल इनकम की बात की है। आई हैव गिवन यू ओनली वन एग्जांपल, नाउ आई एम कमिंग सेकंड एग्जांपल। उसके बाद आप ये बात कहिएगा मुझसे, ठीक है? नाउ सेकंड एग्जांपल, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी, दैट वाज ओनली ऑफ द इनकम, दैट इज ग्रोथ। Now I'm taking second example. Suppose, listen carefully and then you ask this question what you ask right now. अगर किसी देश में with passage of time लिटरेसी रेट बढ़ रही है, किसी देश में समय के साथ साथ साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है, साक्षरता लिटरेसी, तो बताइए ये डेवलपमेंट का इंडिकेटर है कि नहीं है? यस सर। बिल्कुल है। अब मैंने पहला दिखा था ग्रोथ का, अब आ रहा हूं डेवलपमेंट पर, क्योंकि डेवलपमेंट में ग्रोथ भी शामिल होता है, तो आई एम जस्ट कीपिंग इट सेपरेट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। तो आपने कहा अगर लिटरेसी रेट में इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज क्लियर सिंबल ऑफ डेवलपमेंट। इफ एजुकेशन और इफ विद इन एजुकेशन इफ लिटरेसी इज द इंडिकेटर, ठीक है? तो आपने कहा अगर शिक्षा को हम एक आयाम ले रहे हैं और उसमें साक्षरता को संकेतक ले रहे हैं, तो अगर लिटरेसी बढ़ रही है, तो आपने कहा कि ये डेवलपमेंट तो हो रहा है कंट्री में। इतनी बात से आप सहमत हैं? यस सर। नाउ इसका अगला हिस्सा सुनिए। बट एट द सेम टाइम देयर इज ग्रोइंग गैप बिटवीन
फीमेल लिटरेसी एंड मेल लिटरेसी। लेकिन महिला साक्षरता में वृद्धि हुई सपोज ओनली 2%, मेल साक्षरता पुरुष साक्षरता वृद्धि हुई 15%। इट मींस गैप बढ़ गया। द गैप ऑफ लिटरेसी ऑन जेंडर बेस्ड हैज इंक्रीज्ड in spite of level of literacy, total level literacy of country has increased, but at the same time the female and male literacy gap has increased. Now tell me whether this increase in the female and male literacy gap is desirable or not. Sir, not desirable. Not desirable. तो क्या आप इसे प्रोग्रेस कहेंगे? No, sir. ग्रोथ No, sir. डेवलपमेंट है कि नहीं? डेवलपमेंट तो है कहेंगे, sir. Yes, sir. No, sir. प्रोग्रेस नहीं करेंगे। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो मैंने आपको जो एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल सिंपल लिया मैंने ग्रोथ का, वन एग्जांपल आई गेव यू ऑफ डेवलपमेंट, दो डायमेंशन ले लिए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक प्रोग्रेस, व्हाट इकोनॉमिक प्रोग्रेस। एंड द ग्रेट अमर्त्य सेन has done his entire work on the term progress, where he talks about distributive justice, where he talks about welfare economics, and he was awarded Nobel Prize in Economics for his contribution in the area of welfare economics. And he has given a few very new concepts. For one example, I am giving one example, कि अभी तक हम लोग जब भी पॉवर्टी की बात करते हैं, पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन। ये तो बात करते हैं ना कि निर्धनता रेखा से नीचे जो भी हम फिक्स कर रहे हैं पॉवर्टी लाइन, कैसे फिक्स करेंगे हम नहीं बात कर पाएंगे। कि सपोज फॉर एग्जांपल ₹10 इज पॉवर्टी लाइन इन एनी कंट्री। तो जिन लोगों की इनकम 10 से कम है वो बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीब कहलाएंगे, जिन लोगों की इनकम 10 से ऊपर है तो अबव पॉवर्टी लाइन या गरीब नहीं कहलाएंगे। वो हम यही तो पढ़ते हैं ना कि इतने परसेंट पुअर हैं किसी कंट्री में, तो हम कहते हैं इट मींस सो मच परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, वन डिमार्केटेड लाइन इन टर्म्स ऑफ मनी। एंड उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। एनीवे, इतनी बात तो आप जानते हैं। Yes, sir. Suppose I'm just giving you a simple example what is distributive justice and how it is very important in terms of value judgment. Suppose किसी कंट्री में कुल जो पॉपुलेशन है वो है 5 लोग, देयर आर ओनली 5 persons in a country, और पॉवर्टी लाइन है ₹10, पॉवर्टी लाइन है ₹10। इनमें से 5 लोग हैं A, B, C, D and E, they are 5 persons. Out of these 5 persons, income of A and B is more than ₹10, यानी above poverty line, and income of C, D and E below ₹10, यानी below poverty line। बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो out of 5, 3 people are below poverty line. Out of 5, or you can say out of 10, 6 persons are below poverty line, or you can say out of 100, 60% people are below poverty line. ये तो होगा ना? 5 में 3 तो 100 में 60% people in this country are below poverty line. और यही डेटा हमारे हर मेजरमेंट में आता है, गवर्नमेंट यही डेटा पब्लिश भी करती है। लेकिन अमर्त्य सेन ने ये कहा कि ये बात ठीक है कि हाउ मेनी पीपल आर पुअर। अब ध्यान सुनिएगा उनके वर्ड्स, सो मैजिकल वर्ड्स, सो एनलाइटेंड वर्ड्स। उन्होंने कहा कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी पीपल आर पुअर, बट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो हाउ पुअर दे आर, हाउ मच पुअर दे आर। आप बात समझे क्या? कितने लोग निर्धन हैं, अमर्त्य सेन कहते हैं ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे कई इंपॉर्टेंट ये देखना वे लोग कितने निर्धन हैं। आप कितने लोग निर्धन हैं और वो लोग कितने निर्धन हैं, अगर 2 शब्दों को आप देख लें तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। बिल्कुल नया कंसेप्ट। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उनका एग्जांपल दे रहा हूं कि जो मैंने कहा कि 3 लोगों की इनकम 10 रुपए से कम है, तीनों गरीब हुए हमारे एग्जांपल में,
For example, out of these three people, एक व्यक्ति की आय 9 रुपए है, वो गरीब है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दूसरे व्यक्ति की आय 5 रुपए है, गरीब है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तीसरे व्यक्ति की आय सिर्फ 1 रुपए है, वो भी गरीब है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो पर्सन विद ₹1, पर्सन विद ₹5, पर्सन ₹9, all are counted 1 + 1 + 1 3 persons. ये तो हुआ ना हमारे एग्जांपल में, and which is the official data also. But do you think that a person of ₹9 and a person of ₹1 both are equal? No, sir. No, sir. No, sure. Inequalities है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. That is inequality of income among poor people. That is the new dimension that Amar Sen has developed. Because we always talk about poor and non-poor. We never talked about poor among poor. So he measured this very beautifully. Poor, poorer, poorest. It means whether if any poverty eradication program is launched by the government, the first priority of the program should be a person with ₹1, then of ₹5, and then ₹9. So inequalities among poor people, income distribution among poor people are also very important, that he has measured with the help of Gini coefficient that I'm talking about. And then he talked how poverty should be measured. So poverty measurement of Amar Sen in an equation is totally different. What the entire world used to measure before Amar Sen's conceptual development that he has given in his book, Poverty and Famine. Poverty and Famine. I will just try in one day to give you the ideas of what is that book. But unless you understand the Gini coefficient, you will not be able to understand the equation and the dimensions and the mindset of Amar Sen, how he looks at poverty. That is when we talk about progress. The progress is distributed justice. I have given you two examples, one example of growth, one example of development. It means the progress is actually the ultimate desirable issue of any civilized society. That is a zenith of, you can say, both growth and development. Ultimately, we want to achieve progress. And the way to progress goes through the way of growth and development, plus along with value judgment and desirable changes in society, desirable changes in the economy. So when we are able to achieve, along with the growth and development, desirable changes based on value judgment of civilized society, only then we can say that the country is towards the path of progress. So progress is totally different terminology than economic growth and economic development. And I think, and you can also understand, that this is the most important concept out of all three concepts of growth, development, and progress, which is not very much defined in your general books. But if you write only 1-2 sentences, or when you discuss this type of with examples in your interview board, then naturally the board will be highly impressed that you know much more than what the usually general books give you the idea about growth and development. That I always say that to be different from the crowd is the key of success. And these are small things, but that makes you totally different from the crowd. And that is the key of success in any competitive examination, and especially interview board also. So, very simple thing to understand, very simple thing to remember. But with so many examples, I have tried my best to make you very easy and very attractive. And you will not forget these examples for many years. I keep on discussing the issues with my own set of examples, some very recent situation in India and the world. I just gave you the example of what happened day first in Kabul, and how that can be discussed in terms of desirable and undesirable, and whether it's called a progress or not. For some uncivilized people, that may be desirable, but from the entire the world perception, value judgment, society, it is not desirable. Wherever you talk about value judgment, we always think that in a civilized society, not uncivilized and barbaric groups of people. That is how we discuss desirable and undesirable. And whenever we talk about justice, justice is also always desirable. Distributed justice.
justice is a concept of civilized society, a just society, etc. So I think I'm not able to discuss too many things today because I had promised for 1 hour only, and there are other classes. So yeah. Sir, theory of capabilities of Amartya Sen. वो मैं आज डिस्कस कर लूंगा, वो आगे डिस्कस कर लूंगा. अभी तो अमर सेन को मैं जस्ट मेंशन किया प्रोग्रेस में, डिस्कस करूंगा आपसे. अमर सेन किस दिन पढ़ाऊंगा आपको. Okay, sir. Sir, we can add this theory over here in the progress. Yes. मैंने अभी आपसे कहा ना, अमर सेन का पूरा कंसेप्ट, उनका पूरा आइडिया ही, मेजरमेंट ही पूरा प्रोग्रेस की तरफ. दैट इज वेलफेयर इकोनॉमिक्स. I will discuss that. I will tell you in detail. Sir, you said value judgment, desirable or undesirable, but sir, it's a subjective phenomenon, na? Value desirable. No, it is not individual subjective. मैंने बार-बार कई बार हाईलाइट किया, it is the perception of a civilized society, established values which are common. Yes, Human right established value, इस तरह के values है जो common values हैं. ऐसा नहीं कि हमारा दर्शन कुछ और हो, आपका दर्शन कुछ और है, वो नहीं. आपने इसके व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखा है, संपूर्ण समाज के परिप्रेक्ष्य में रखा है, जिसको विश्व स्तर पर हम लोग एक उचित मूल्य मानते हैं. Like a UN human rights charter and all. मैंने अभी आपसे वही बात कहा, वो मानवाधिकार है, तो उसको हम मानते हैं, ये वैल्यूज हैं, हमारे एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज हैं एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में. इट इज नॉट अ परसेप्शन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. वो नहीं. सर थोड़ा सा डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में थोड़ा अंतर बताइएगा सर. मैंने कितना एग्जांपल दिया आपको. मैंने डेवलपमेंट का एग्जांपल किया, लिटरेसी का बढ़ना डेवलपमेंट का एग्जांपल था, और वो किस प्रकार बढ़ रहा है वो प्रोग्रेस का एग्जांपल था. मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिए, ग्रोथ और प्रोग्रेस बताया. सर इनकम प्लस डिजायरेबल इज इक्वल टू डेवलपमेंट कहेंगे ना सर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. देखिए, ग्रोथ आपके डेवलपमेंट का भाग है, तो आपको याद हो गया. आपको ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इनकम प्लस नॉन इनकम डेवलपमेंट. अब हम कह रहे हैं कि डेवलपमेंट प्लस डिजायरेबल चेंजेस इज कॉल्ड प्रोग्रेस. बहुत सिंपल सा इक्वेशन है. डेवलपमेंट प्लस डिजायरेबल चेंजेस इज प्रोग्रेस. डेवलपमेंट प्लस अनडिजायरेबल चेंजेस इज ओनली डेवलपमेंट, नॉट प्रोग्रेस. मैंने 2-3 बार ये सेंटेंस कहा आपसे. पहले मैंने ग्रोथ प्लस डिजायरेबल को कहा कि केवल ग्रोथ के रेफरेंस में देखेंगे तो ग्रोथ प्लस डिजायरेबल चेंजेस मींस प्रोग्रेस. फिर मैंने लिटरेसी के रेफरेंस में कहा कि डेवलपमेंट प्लस डिजायरेबल चेंजेस मींस प्रोग्रेस, अदरवाइज नॉट. अगर फीमेल और मेल लिटरेसी में गैप लगातार बढ़ रहा है तो डिजायरेबल चेंज नहीं है, तो इसे हम केवल डेवलपमेंट तो कहेंगे लेकिन प्रोग्रेस नहीं कहेंगे. इसी प्रकार देश की आय बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, इसे ग्रोथ तो कहेंगे, लेकिन अगर विषमताएं बढ़ रही हैं इसे ग्रोथ कहेंगे, लेकिन क्योंकि डिजायरेबल नहीं हुआ इसलिए उसको प्रोग्रेस नहीं कहेंगे. इसलिए मैंने लिखा है ब्रैकेट में कि समथिंग मोर दैट इज वैल्यू जजमेंट ऑन व्हाट इज डिजायरेबल और अनडिजायरेबल. आसान होगा? ओके सर. यस सर. ओके, then I have taken 5 minutes more than the time announced. Let us discuss next week. Next week, because I have the. Sir, I have a question. Then can we have a question session also? Yeah, sir. कल क्लास नहीं लेंगे. Can we measure well-being of the people? कल मैंने ऑलरेडी MA फाइनल का एक क्लास अनाउंस किया हुआ है. उनका एग्जाम है मंथ ऑफ सितंबर. तो अभी मुझे 1-2 दिन उनसे बात करनी है. तो आई हैव गिवन टाइम टू MA फाइनल बिकॉज दे आर हैविंग द एग्जामिनेशन लास्ट वीक ऑफ सितंबर. So let me, because you have just started, they are at the fag end of their session. So I have tomorrow and day after tomorrow I will have the classes of MA final. Sir, कब लेंगे क्लास? can we measure a well-being? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ. जब एक साथ कई लोग बोलते हैं तो मैं सुन नहीं पाता हूँ. Sir. हाँ, yes. Sir, GDP as well as GDH को global development happiness से can अब हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं. हम लोग अभी हैप्पीनेस इंडेक्स की बात भी करेंगे. तब सवाल पूछिए ना, बिना हैप्पीनेस इंडेक्स के या हैप्पीनेस शब्द को नहीं समझ पाए हम अभी तक. किस कंट्री ने हैप्पीनेस? हाँ बताएं. Sir, I have a question.
सर जो वुमेन्स हाउस होल्ड वर्क्स जो करती हैं, तो क्या हम उन्हें ये कह सकते हैं कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट कर रही हैं? देखिए, आज की तारीख तक पूरे वर्ल्ड में जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज ऑफ बाय विमेन हैं उसको जीडीपी में शामिल नहीं करते, बट इज नॉट इंक्लूड जीडीपी। आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जब हम लोग जीडीआई पर आएंगे तो मैं आपको बहुत सारे नए कंसेप्ट बताऊंगा, और तब अगर आप सवाल ये पूछेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सर जीएनपी में तो कह सकते हैं। किसमें? जीएनपी, जीएसटी में? जीएसटी कहां से आ गया इसमें? जीएनपी में नहीं आएगा, क्योंकि जीएनपी जीडीपी से ही बनता है। आप ये लिखते हैं ना, जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम इज इक्वल टू जीएनपी। यस सर। तो जब जीडीपी में ही हाउस होल्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन नहीं आता है, नहीं जोड़ा जाता है फॉर मेनी रीजंस, वो क्यों नहीं करता मैं आगे चर्चा करूंगा, तो फिर जीएनपी में क्यों आ जाएगा? वहां भी नहीं आएगा, बिकॉज जीडीपी तो बेस है ना, उसी से हम जीडीपी से बनाते हैं जीएनपी, उसी से बनाते हैं पर कैपिटा एट कांस्टेंट, सब उसी से बनता है। जीडीपी तो आपका आधार है, तो उसमें नहीं आता है। लेकिन अभी हाल में भारत सरकार ने कुछ ऐसे उपाय शुरू किए हैं, सर्वे शुरू किए हैं, जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा, जहां पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि फीमेल के जो एक्टिविटीज हैं उसको क्या हम शामिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अभी भी जो हमारा पूरे वर्ल्ड में जो इनकम मेजरमेंट है वो यूनाइटेड नेशन सिस्टम नेशनल अकाउंट उसी पर बेस्ड है, और उसमें विमेन के कंट्रीब्यूशन को शामिल नहीं किया जाता है। ओके सर। इसमें देखिए कितना बढ़िया सवाल आया था। एक बार मैं जस्ट एक क्वेश्चन बना के बात फिनिश कर रहा हूं। उसने पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी? निम्न में से कौन जीडीपी में शामिल नहीं होता? नीचे दिया था, 4 ऑप्शन दिए थे। नंबर 1, कंट्रीब्यूशन ऑफ एयर होस्टेस, विमान परिचारिका। नंबर दिया था कंट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल ब्यूटिशियन। थर्ड दिया था लेडी डॉक्टर। चौथा दिया था हाउस होल्ड मदर। तो माँ की आय, माँ की कंट्रीब्यूशन को शामिल नहीं करते, फैमिली में कंट्रीब्यूशन है लेकिन इनकम में शामिल नहीं करते। और क्यों नहीं करते, कैसे नहीं करते, इस पर हम लोग बात बहुत डिटेल करेंगे जब हम जेंडर इश्यूज पर बात करेंगे। इसी चैप्टर में हम बात करेंगे उसकी। सर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मेजर नहीं करी जाती हैं जीडीपी एंड जीएनपी में। जाहिर सी बात, बहुत सारी चीजें मेजर नहीं करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स मेजर नहीं करते हैं। अब ये मेरा विषय नहीं है, तो प्लीज थोड़ा सा अभी छोड़े हम लोग, जब तो आएंगे तो हम बात करेंगे। तो जीडीपी बहुत सारी बात मेजर नहीं की आती है, दान दक्षिणा मेजर नहीं की आती है, वो जीडीपी की परिभाषा जो पढ़ी है उसमें आप वो सारी बातें बाहर हो जाती हैं। सर इंजूरियस प्रोडक्ट भी नहीं मेजर करते हैं, ऐसे ढेर सारी हैं। हम बात ये अभी नहीं कर पा रहे हैं, because that is not my paper right now. My paper is paper 2, and whatever question you're asking for paper 1. But I will discuss. I will very happy to discuss all these things. But let me reach to that point at least. Okay. So then we'll have. Excuse me, sir. Yeah. सर क्या हम सेल्फ एम्प्लॉयड को बिजनेसमैन कह सकते हैं? अब हम लोग आगे बात कर लें, अभी बात करेंगे, अभी आपको फिर बात करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। हम ऑलरेडी 10 मिनट्स ओवर हो गए। So I have a next class after a couple of minutes. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you so much.